السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ ارطغرل اور اس کے سپاہی قلعے میں گھسنے کے لیے تیار تھے، جبکہ عارث سمجھ رہا تھا کہ ارطغرل مر چکا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں ترگت کہتا ہے، آخر کار قلعہ جیسر قلعہ فتح کرنے کا وقت آ گیا ہے سردار۔ اگر آپ ہمیں یہاں نہ لاتے تو ہمیں یہ شرف حاصل نہ ہوتا۔ ارطغرل کہتا ہے، ہم اکٹھے ایک چنار کے درخت کی طرح ہیں، میں تنا ہوں اور آپ اس کی شاخیں ہو۔ ہمیں زندہ رکھنے والا پانی ہمارا ایمان ہے، اور ایمان ہی ہمیں یہاں لے کر آیا ہے۔ اس جنگ میں نہ صرف ہم قلعہ جیسر قلعہ فتح کریں گے، بلکہ دوسرے علاقوں کے راستے بھی ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ ہمارا مقصد پوری دنیا میں اللہ کے انصاف کو قائم کرنا ہے، مظلوموں کے لیے امید اور ظالموں کے لیے خوف پیدا کرنا ہے۔ اس جنگ میں ہم یا تو شہید ہوں گے یا غازی ہوں گے، ہم اللہ کی رضا کے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ ترگت کہتا ہے، اگر میں شہید ہو گیا تو اسلان خاتون اور قبیلہ آپ کی امانت ہوں گے سردار۔ بامسی کہتا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھنا نصیب نہ ہو، چلیں گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو الوداعی دعا دیتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، جیسے ہی سورج ڈوبے گا اس وقت دشمن پر حملے کا وقت ہوگا۔ پھر وہ سب اپنے گھوڑوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ قلعہ جیسر قلعے میں ارطغرل کی موت کا جشن منایا جا رہا تھا۔ اسی دوران ارطغرل اور اس کے سپاہی بیس بدل کر قلعے کے خفیہ راستے میں داخل ہو چکے تھے۔ دوسری طرف ماریا اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں اسے عارث کی آواز آتی ہے تو وہ سونے کا بہانہ کرنے لگتی ہے۔ عارث وہاں پہنچتا ہے تو ماریا کو سوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ پھر وہ اپنے مذہب کی علامت کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے فتح عطا فرمائی۔ اسی دوران ماریا آنکھیں کھول دیتی ہے اور پیچھے سے اٹھ کر ایک خنجر نکال لیتی ہے۔ پھر عارث اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، ارطغرل مر چکا ہے، میں نے تمہارے بھائی کا انتقام لے لیا ہے۔ یہ سن کر ماریا رونے لگتی ہے۔ عارث پوچھتا ہے، کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ ماریا کہتی ہے، یہ خوشی کے آنسو ہیں، آج آپ کی فتح کا دن ہے۔ عارث کہتا ہے، چلو ماریا تیار ہو جاؤ، تم بھی جشن میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ آج رات میں سب کے سامنے اعلان کروں گا کہ تم میری بیوی بنو گی۔ پھر عارث اٹھ کر چلا جاتا ہے اور ماریا رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ دمرل کو کہتا ہے، تم آگے جا کر بلند آواز میں اعلان کرو کہ ہیرو تیتن آ گیا ہے۔ یہ سن کر دمرل زور سے کہنے لگتا ہے، ہمارا عظیم ہیرو تیتن آ رہا ہے۔ یہ سن کر عارث کے کچھ سپاہی خوش ہو کر ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس طرح وہ ان سب کو مار دیتے ہیں اور دوبارہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اسی دوران قلعے میں جشن جاری تھا۔ عارث اور باقی لوگ خوب شراب پی رہے تھے۔
फिर हारिस उतर कर नीचे कोस्टास के पास आ जाता है और कहता है तीतन अभी तक नहीं आया। कोस्टास कहता है आप तो जानते हैं कि वो कितना मोहतात होता है, वो अंधेरे में यहाँ आना चाहता है ताकि किसी को खुफिया रास्ते के बारे में पता ना चले। हारिस कहता है सबको खूब शराब पिलाओ, आज हमारी जीत का दिन है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल किले के खुफिया दरवाजे पर पहुंच गया था। इस तरह वो सब किले में दाखिल हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। वो अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें शोर सुनाई देने लगता है। अर्सिस कहता है यह तीतन की फतह की खुशी में जश्न मना रहे हैं सरदार। तुर्गुत कहता है यह दूसरी बार आपकी मौत का जश्न मना रहे हैं सरदार। बामसी कहता है इन्हें मनाने दो सरदार और खूब शराब पीने दो, फिर हम अपनी तलवारों से इनको चीर डालेंगे। फिर अर्तुगरुल दुमरुल को कहता है तुम सहन में जाकर दोबारा तीतन की आमद का ऐलान करो ताकि वो हमारे हक के मुताबिक हमारा इस्तकबाल कर सकें। दुमरुल आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद अर्तुगरुल भी अपने सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ जाता है। अंदर मारिया दिल में कहती है आरिस मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल करूंगी और अपने भाई का इंतकाम लूंगी। बाहर जश्न जारी था। आरिस कहता है मारिया अभी तक नहीं आई। कोस्टास कहता है मैं उसकी तरफ सिपाही भेजता हूँ। इतने में दुमरुल अंदर दाखिल होकर बुलंद आवाज में कहता है अजीम हीरो तीतन आ गया है। यह सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। आरिस कहता है कोस्टास चलो हमारे अजीम हीरो तीतन और सिपाहियों का अच्छे तरीके से इस्तकबाल करें। फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। सब लोग दरवाजे के सामने खड़े होकर तीतन जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। आरिस और कोस्टास भी सामने खड़े थे और फिर अर्तुगरुल अंदर दाखिल होता है। अर्तुगरुल आरिस के सामने जाकर बैठ जाता है। आरिस कहता है मेरे प्यारे दोस्त तीतन तुम एक बड़ी फतह हासिल करके वापस आए हो। तुमने अर्तुगरुल की लाश को इस पाक जमीन में दफन कर दिया है। खुदाबंद तुम्हें जन्नत में कबूल करे। मेरे प्यारे दोस्त खड़े हो जाओ और मुझे अपने साथ गले मिलने दो। फिर अर्तुगरुल खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तीतन नहीं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल हूँ।
आरिस मारिया के पास पहुंच जाता है और कहता है, मेरे साथ आओ मारिया, हमें किले से निकलना होगा। मारिया कहती है, जहन्नम में जाओ तुम। आरिस उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है, गद्दार। इतने में अर्तुल वहां पहुंच जाता है। बामसी अंदर कैद खाने में पहुंच जाता है और वहां मौजूद लोगों को कहता है, आप खौफजदा मत हों, अब से आप आज़ाद हैं, जाकर अपने घर वालों से मिलें। सब कैदी बहुत खुश हो जाते हैं और बामसी का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर वो सब बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ आरिस भाग रहा था। फिर वो दिल में कहता है, किले से जिंदा निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अब मैं सिर्फ मुर्दा आदमी बनकर यहाँ से निकल सकता हूँ। फिर वो एक मुर्दा सिपाही को घसीट कर अंदर ले जाता है और अपना लिबास उतारने लगता है। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। किले पर अर्तुगरुल साहब के सिपाहियों का मुकम्मल कंट्रोल हो चुका था। कुछ सिपाहियों और कमांडरों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया था। इतने में अर्तुगरुल निकल कर बाहर आता है और कहता है, बामसी, हम इन सिपाहियों की जिंदगियों के जिम्मेदार हैं। जब तक हम किले को पूरी तरह महफूज नहीं बना लेते तब तक इनको कैदखाने में बंद कर दो। फिर बामसी उनको लेकर अंदर की तरफ चल पड़ता है। अर्शद पूछता है, अर्तुगरुल साहब, आरिस का क्या बना? अर्तुगरुल कहता है, मैंने उसे जख्मी कर दिया था। मैं उसे मारने ही वाला था कि कुछ सिपाही आ गए। वो एक कुत्ते की तरह भाग गया। मेरे सिपाही उसके पीछे हैं, जल्द या देर से वो उसे पकड़ लेंगे। फिर अर्तुगरुल गुनकोत और अब्दुर्रहमान को कहता है, किले का एक एक इंच देखो और आरिस को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लाओ। इसी दौरान आरिस अंदर अपना बेस बदल चुका था। बाहर अर्तुगरुल के सिपाही किले की सफाई करने में मसरूफ थे। बामसी अर्तुगरुल के पास पहुंचता है। अर्तुगरुल पूछता है, किले के अंदर क्या सूरत हाल है बामसी? बामसी कहता है, हमने एक भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ा सरदार, किला अब हमारे काबू में है। अर्तुगरुल कहता है, तो चलो फिर अपने झंडे यहाँ गाड़ देते हैं ताकि दूसरे कबीलों को हमारी जीत का पता चल सके। अंदर आरिस अपना बेस बदल कर मुर्दा सिपाहियों के दरमियान लेट जाता है ताकि वो अपने आप को मुर्दा जाहिर कर सके। बाहर झंडे लहरा दिए जाते हैं। अर्तुगरुल के सारे साथी अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब को खामोश कराकर कहता है, हमारा पाक झंडा जिसके हर इंच में इंसाफ है, अल्लाह के हुक्म से उसे यहाँ आने का शर्फ हासिल हो गया है। ये एक नई शुरुआत है। आज हमने एक बीज बो दिया है। ये बीज फैल कर चिनार का दरख्त बन जाएगा और पूरी दुनिया पर छा जाएगा इंशाअल्लाह। अब हमारी फतह का ऐलान अजान मुहम्मदी से करते हैं। फिर एक सिपाही अजान देने लगता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।